Hey guys, Saklan here, co-founder and COO at the Remote Reps, and today I'll be your host for the fourth episode of Rep Talk. So our guest today is someone who's very passionate about paddle. So he owns a paddle court by the name of Paddle District. He's part of the Premier Paddle League that recently just started in Pakistan. We will talk a lot about that as well. He also runs his own structural company called Tensile Pakistan that does or makes infrastructure for paddle. They make football arenas, they make cricket fields. So he's someone that's really in touch with the sports market, you can say, in Pakistan. So today our guest is Abdullah Shafiq. Abdullah, welcome to the show. Thank you for having me today, Saklan. Let's start off with your early life. What was that like? What did you grow up? Where did you grow up? And what were your biggest influences when growing up? So, starting with the early life, I was born in Faisalabad, was raised there for the first 6-7 years of my life. Family shifted to Islamabad back in 2005-06. So, schooling इधर की है Islamabad की. Joined Roots Millennium in Islamabad. Spent there for like 10 years, good 10 years, a decade. Graduated from there after O levels. After that, law का शौक था. During A levels शौक पड़ा था, तो pursued legal studies, joined law school. तो law complete किया, LLB honors. उसके बाद followed by that मास्टर्स उसी में स्पेशलाइजेशन की. इन द मीनवाइल प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली थी लॉ की. वो बड़ा शौक था, पैशन कह सकते हैं. इन द बिगिनिंग था उसका. Sorry to cut you, but law का passion क्यों था? Like बहुत कम लोग, even when I was growing up and when we had to decide our careers, तो law, at least मेरे circle में, that wasn't a very popular choice. So it's a very interesting story. Law का initially passion नहीं था. Always was looking forward to establishing a business, joining a business, क्योंकि एक back end पे business family mindset था. ठीक है. लेकिन during later O levels और A levels I remember family business or that जिसमें मेरा थोड़ा सा legal aspects of Pakistan से जरा थोड़ा सा उसमें की तरफ इन्वॉल्व हुआ. देखा कि एक्सपोजर आया, देखा कि हाउ इट वर्क्स. सो इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम. तो आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते देखते कोर्ट रूम्स देखे, हाउ इट गोज, क्या होता है. तो इट रियली इंटरेस्ट स्टार्टेड टू डेवलप. तो उसके बाद वो बिल्कुल ही पिवट किया ए लेवल के बाद. फ्रॉम द जो कोर था वो बीबीए की तरफ सोचा हुआ था, लेकिन बिल्कुल पिवट किया तो एलएलबी की तरफ परस्यू किया. तो फैमिली सपोर्टेड, उन्होंने कहा जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी है. तो उसके बाद एलएलबी किया फ्रॉम डिड एन एक्सटर्नल डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. उसको ड्यूरिंग द डिग्री मैंने ज्वाइन कर ली थी प्रैक्टिस एज एन इंटर्नशिप. ज्वाइंड ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान. स्पेंट लाइक 7-8 months और अराउंड अ ईयर देयर while studying. तो LLB कंप्लीट हुआ तो ऑफिशियली प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली. लिटिगेशन जो आपका टिपिकल कोर्ट कचहरी माहौल होता है इस्लामाबाद का, उसमें अपने आप को पहले एक्सपोज था, थोड़ा ज्यादा किया. ठीक है. डिड इट फॉर लाइक 3 years, गुड 2-3 years. तो उसके बाद थोड़ा सा दोबारा पिवट किया कि अब दोबारा बिजनेस की तरफ आते हैं. अनफॉर्चुनेटली माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ही पास्ड अवे ड्यू टू सिकनेस, कैंसर, ब्लड कैंसर. तो वो फिर वो पिवट करना पड़ गया. ठीक है. मतलब दोबारा there was no other choice, like you had to step in. And what was your family business? My brother, he founded Tensile Pakistan. Okay. It's a company. We make lightweight membrane structures all over Pakistan. We work all over Pakistan, all kind of structures, जिसमें आपकी steel fabrication, tensile architecture, fabric architecture, membrane architecture, सारा आ जाता है. We design, install, fabricate from the concept till the execution. We do that. So that's my story. तो उसके बाद during that time पैडल का इंटरेस्ट पाकिस्तान में, मतलब
was doing running Tensile Pakistan, तो always looking for opportunities, new opportunities. किधर अब क्या नया explore कर सकता क्या हूँ, कर सकते हैं, हाँ. क्या कर सकते हो. तो meanwhile, अच्छा, let's again, sorry to cut you, but let's talk timeline wise. So like, sure. you graduated LLB, or you did LLB in 2021, 2021, and then you practiced till 2024. 2023 mid 2024. ठीक है, 23 till 24 you 2023 you practiced. could say. ठीक है, क्योंकि वो मैंने ग्रेजुएशन से पहले ही प्रैक्टिस एज एन ठीक है, इंटर्न एंड एज एन अप्रेंटिस स्टार्ट ठीक कर है, दी थी. सो स्टार्ट प्रैक्टिस इन 2020. सो ग्रेजुएटेड इन ठीक है. 2021. तो प्रैक्टिस के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, अच्छा, ठीक कोशिश है, की साइमल्टेनियसली करने के चला लिए, है, हाँ. लेकिन इवेंचुअली नहीं हो सका क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो यू नो टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. हाँ, सुबह definitely. 8 बजे से लेके वो रात 7 बजे तक वो बस वही. And what was that experience like? मजा आता था या ख्वारी थी, सरदर्दी लगी? खुआरी थी. हाँ. इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में इनिशियली एक यंग लॉयर के लिए बहुत खुआरी है. कोई पैसे नहीं है फॉर द फर्स्ट 1-2 years. आपको पैसे टू प्रैक्टिस, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं. I've heard कमाते नहीं है. कि शुरू में जो है ना 2-3 साल कोई पैसा आपको नहीं देता. नहीं देता, वो आपको ठीक है, लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से टू मेक अ नेम आउट ऑफ योर सेल्फ, टू ठीक लर्न है, थिंग्स. तो वो आपको लगाने पड़ते हैं. खुआरी थी बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा ना वो इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, और वो आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट. तो आई रियली वांटेड टू परस्यू इट बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका. ठीक है, और यू कुड से फॉर्चुनेटली फॉर मी हाँ. अगर आप देखो तो. Fortunately, I would agree, most definitely, Yes. fortunately. तो इस ठीक तरह है. था. So you were doing business, or you were involved in some part of the business simultaneously while you were practicing Yes. law, and then you transitioned into full-time working towards Tensile Pakistan in towards the end of 23, I would say. Towards the end, start of 23. Start or mid of 23. Perfect. And then how did paddle come into play? So while working, so what Tensile Pakistan does is, when I joined and took over the company, so we were initially only dealing with membrane and lightweight structures. आपके commercial जितने भी structures होते हैं ठीक all है. over Pakistan. So what I felt a gap was कि we are not into sports. एक vertical है जिसमें sports infrastructure है. ठीक है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके क्रिकेट फील्ड्स, आपके फुटबॉल एरिनाज, आपके तब पैडल तब नहीं था इतना. ठीक है. वो बड़ा रिसेंटली, बट वो बूम हो रहा था, अभी स्टार्ट हो रहा था, हाँ, in its early stages. दिस इज वी आर इन 2024 राइट नाउ ना. 2024 में वो इतना नहीं था, ठीक लेकिन मेरा वो रियली पीक माई इंटरेस्ट कि वी कैन ऐड दिस वर्टिकल. तो उस पर मैंने रिसर्च शुरू की. इन द मीनवाइल सबसे पहले मैंने अपना इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, लाइटवेट स्ट्रक्चर्स डिप्लोमा किए. अच्छा, ठीक है. IMS Bauhaus इन जर्मनी. तो क्योंकि मैं चाहता था कि स्ट्रक्चरल जो क्वालिफिकेशन है मेरे पास तो वो किए. तो फिर पैडल बैक इन, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वेयर आई गॉट टू नो, वेयर आई गॉट टू एक्सपोज्ड myself with paddle was I have this client in Karachi, a big conglomerate in Karachi. They were looking out to build paddle courts. So Okay. they approached me, told me कि since you are growing in sports infrastructure, would you be able to make paddle courts for us? तो मेरे लिए तो वो लफ्ज ही पहली दफा था कि ये है क्या? ये है क्या, पैडल क्या चीज है, पैडल है क्या, और डिजाइन्स वगैरह क्या के डिजाइन इट फॉर अस. ठीक है. तो हमारी टीम ने वी सेट टुगेदर, वी रिसर्च्ड व्हाट इज पैडल, उसका सारा डायमेंशन, स्पेसिफिकेशंस, एंड वहां से आई गॉट टू नो about paddle is. तो फिर so मतलब research शुरू हो गई. makes sense. So मतलब rather than you got exposed to it as a sport or you played it, no, instead it was more of a project कि यार अब ये project है, ये करने, और अब मुझे पता चल रहा है कि paddle, it's a new sport that's coming in. ठीक है. है. मैंने उसमें numbers देखे, globally देखे, तब at that time in Pakistan it was बस कराची में ही था. हाँ, बहुत definitely. अभी भी कराची में I feel like काफी ज्यादा है. Karachi is the biggest market in Pakistan, still is. उसके बाद लाहौर फिर में खुल रहे थे. लाहौर ने अभी ये जो पैडल इन और ये सब नहीं बने थे. तो तब लाहौर में आई विजिटेड लाहौर, कराची दूर था. लाहौर में देखा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था उसका देखा. फिर ऑनलाइन जो है रिसर्च बहुत ज़्यादा की इस पे, ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल ट्रेंड्स पे, क्या इसका ट्रेजेक्टरी रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्या प्रोजेक्शन है, किस तरह ये स्पोर्ट्स ग्रो किया. ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था. वो नंबर्स जो थे देवर
लाइक क्रेजी नंबर। शॉकिंग। वो तो वो नंबर्स दे आप यूजुअली कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, रनिंग अ बिजनेस, सीइंग नंबर्स डेली, वो नंबर्स तो शॉकिंग थे वो। ठीक है, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल सही है। नंबर्स थे, आरओआईज जो थे। तो ठीक है। नॉट इन जस्ट इन पाकिस्तान, ओवरऑल ग्लोबली, अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबली वो यस। ग्लोबल ट्रेंड ही वो बहुत जो हाँ था, अनबिलीवेबल ट्रेंड था। तो उसको देखा, उसको एक्सप्लोर किया। तो देन डिस्कस्ड विद two of my friends, Anas and Rayan and Amar bhai. They were interested. I ठीक pitched है। them. They joined in. तो अच्छा, परफेक्ट। let's do this. तब पाकिस्तान इस्लामाबाद में I believe one club was operational. वो भी नया नया खुला था when we started. ठीक We है। were the third facility in Islamabad. Yeah, अच्छा, third or नाइस। fourth. I think we were third or fourth which started. अभी तो इस्लामाबाद में we have more than 30 to 40 facilities. हाँ, अभी इस्लामाबाद पेट में। रिसेंट आई थिंक अ ईयर और टू उसमें बहुत मतलब सही जो है ना वो हुआ है। And मैं कराची भी बल्कि गया था और वहाँ का जो पैडल सीन, आई गॉट एक्सपोज टू इट बैक इन 2024। हाँ। तो वहाँ पे उस वक्त भी ना मतलब जहाँ पे हम खेलने जाते थे तो इट यूज्ड टू बी बुक्ड एट ऑल टाइम्स। और मुझे फिर जो उधर के दोस्त यार थे वो यही कह रहे कि यार ये तो बड़ा सीन है और ये शुरू शुरू में इस्लामाबाद में भी यही था। वो लिमिटेड फैसिलिटी, सप्लाई आपकी बहुत लिमिटेड थी। एवरी फैसिलिटी हैड मैक्स 2 कोर्ट्स इनिशियली सबके पास थे, और 4 फैसिलिटीज थी, तो आपके टोटल 10 कोर्ट्स बन गए। खेलने वाले आपके जो थे वो बहुत ज्यादा थे, तो वो बुक्ड, सारे कोर्ट्स ऑल द टाइम बुक्ड। बट इवेंचुअली स्पोर्ट्स ग्रू और लोग भी आना शुरू हुए, और फैसिलिटीज अब बहुत ज्यादा बन गई हैं। परफेक्ट। तो इस तरह it was ठीक है। brought in सो Parallel District. you got in touch with your friends and you got a green light. Let's go ahead and build do this. this. Let's do this. So Because commercially वो बहुत viable model ठीक था. है। Still is. ठीक है, perfect. That's exactly what I want to get into right now. So when you decided, we were going to open a paddle court, what were some of the things that you guys considered, whether that be in terms of, the location that you guys decided, the cost of it, what the ROI would look like? So, what was that whole strategy or thought process or that working like? What did you guys consider? So initially वो तो एक हनीमून पीरियड आई वुड से वो चल रहा था। तब के जो नंबर्स और जो हमने कंसिडर किए थे और देखे थे, जो प्रोजेक्शंस देखी थी, वो अब नहीं है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, just because there's more competition now, ऑप्शन ज्यादा आ गई है। हो गया। स्पेशली इन टीयर 1 सिटीज जो आपके KLI है, उनमें तो नहीं है। उनमें तो क्योंकि सप्लाई आपकी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। ठीक है। तो इनिशियली लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट इज वन ऑफ द कोर फैक्टर जिससे आपका बिजनेस चलेगा इन पैडल। लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। And then in location, what do you consider? Like, does it need to be close to residential areas या commercial areas में हो जहाँ पे universities आसपास हैं? फॉर पैडल यू नीड अ वेरी बिग स्पेस। Okay. मतलब एक कोर्ट आपका जो है वो अराउंड 66 फुट बाय 33 फुट बनता है। तो साथ आपका कैफे है। तो फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर टू मेक 2-3 कोर्ट्स, यू नीड एटलीस्ट 2-3 कैनाल्स ठीक ऑफ है। लैंड, ऑफ बेयर लैंड। वो ढूंढना स्पेशली इन इस्लामाबाद में, इंसीडियस सेक्टर्स में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। Difficult. बहुत मुश्किल है। सो यू हैव टू लुक फॉर आउटस्कर्ट्स, अच्छा, ठीक है। जहां पर आपको ये जो लैंड है वो मिल जाए, और वो उस प्राइस पॉइंट में मिल जाए जिस प्राइस पॉइंट में वो इकोनॉमिकली और कमर्शियली वायबल है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो उसमें लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट उसमें ऐसा नहीं है कि यू नीड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, आपको वो बिल्कुल उस तरह चाहिए। तो इस लिहाज से आपको वो सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं कि वेदर अब जिस तरह इनिशियली, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ आवर फैसिलिटी। इनिशियली वी वर गोइंग फॉर अ लोकेशन जो जिसका रेंट जो उस वक्त हमें नजर आ रहा था, वो मतलब वी वाज वेरी हाई कंपैरेटिवली इनटू व्हाट वी आर पेइंग राइट नाउ। इट वाज 5-6 इनटू दैट। Okay, 5 times, 6 बट times. उस टाइम हमें वो भी ठीक लग रहा था। कि चलो ठीक है। ठीक है, अब वी आर स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल। मतलब वो ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन चल रही थी, रियलिटी हिट नहीं की थी। ठीक है। लेकिन अब लुकिंग, थैंकफुली हमने वो नहीं सेलेक्ट की। वो थोड़ी सी रिलक्टेंस थी कि ये अभी ये बबल है, ये बस्ट कर सकता है। फिर भी अपने आप को उतना थोड़ा इजी किया यार, कम जो है ना इस पे, मतलब क्योंकि दैट्स अ रिकरिंग कॉस्ट, राइट? तो वो तो, और दैट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट चंक
दैट्स जो द एक बिगेस्ट चंक। आपकी रिकरिंग कॉस्ट सबसे बड़ी वो है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आपका इक्विपमेंट कॉस्ट है, क्योंकि एवरी 2-3 months यू हैव टू रिप्लेस योर इक्विपमेंट एंड न्यू इक्विपमेंट। तो ये आपकी रिकरिंग कॉस्ट में आ जाती हैं, जिसमें फिक्स कॉस्ट जो आपका रेंटल्स है वो सबसे दो ज़्यादा हाईएस्ट। ठीक तो है। उसमें लोकेशन डज मैटर, लेकिन बिल्कुल कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, इट रियली डजंट मैटर। मतलब वो शहर से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, आउटस्कर्ट्स में भी चलेगी, लेकिन वो ऐसा ना हो कि शहर से जहाँ आपकी आबादी है या जहाँ आपका रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ आपके ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाए, ठीक घंटे है। की ड्राइव हो। ठीक है। 15-20 मिनट्स इज़ फाइन। हाँ सारे ठीक है। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही है, ठीक लाहौर है। में भी ऐसे ही है। तो ये लोकेशन वाइज है। उसके बाद आपने क्या पूछा था? उसके मतलब लोकेशन के अलावा व्हाट वर द अदर थिंग्स, सो लाइक अब इसको बनाना है, ठीक है, तो बनाने में उस वक्त तक डिड यू हैव एक्सपीरियंस बिल्डिंग अ पैडल कोर्ट उस वक्त तक, या वाज दिस योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? नो, आवर्स वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, अच्छा दिस बिल्डिंग वाज, अ पैडल अच्छा कोर्ट। ठीक है। आवर्स वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद काफ़ी किए हैं, लेकिन वो आई टोल्ड यू आई हैड अ क्लाइंट, उनका भी आई डिक्लाइंड, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं नहीं था। था उसमें। मैंने कहा हाँ फुटबॉल क्रिकेट तक तो ठीक था, हाँ ये पैडल लेट मी जस्ट एक्सप्लोर इट हाँ हाँ अ हाँ। बिट, गिव मी सम टाइम। तो उनके पास टाइम नहीं था, तो फिर आवर्स वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। वी मेड इट आवरसेल्फ, मेरी अपनी टीम ने, वी एट टेंसल पाकिस्तान मेड इट। तो उसमें हमने ड्राइंग्स वगैरह सारी रिसर्च करके वी मेड इट, इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है कोर, वो यही है कि अगर कोई बंदा पैडल कोर्ट खोलना चाह रहा है हाँ, और कॉस्ट टुडे, उसकी क्या वो कॉस्ट है? कॉस्ट हाँ। इफ यू आर आस्किंग फॉर नंबर्स, तो नंबर्स जो आपका एक कोर्ट है, विदाउट सिविल वर्क, विदाउट आपके जो बाकी सारी कॉस्ट है, लैंडस्केपिंग, लैंड, जस्ट कोर्ट इनसाइड अ प्लेइंग एरिया, इट कॉस्ट यू अराउंड 4.5 to 6 million. ओके, एंड दैट इंक्लूड्स योर कोर्ट, आपका नेट, आपका वो स्ट्रक्चर जो है। Yes, the playing area, that's ठीक है। all. आपका नेट, आपका ग्लास, आपका हाँ स्टील, आपका टर्फ, आपकी लाइट्स, that's all. ठीक It है। starts at 4.5 million if you're going for a locally made court ओके and a Chinese imported turf. ठीक And है। if you go for an totally imported, Chinese imported, it goes up till 6-7 million. If you go for a Spanish imported, it goes up till 10-11 million. ठीक तो है। पाकिस्तान में सारा ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड ही चल रहा है, विद अच्छा चाइनीज इंपोर्टेड टर्फ्स जो आपकी चल रही हैं। ठीक है। तो यही इस तरह ही चल रहा है। एंड इज दैट द ग्लोबल स्टैंडर्ड एज वेल, या ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो मतलब इट्स यू नो वेरी एक्सपेंसिव टू गेट इन पाकिस्तान, या डू यू फील लाइक वो जो चाइनीज टर्फ आ रही है दैट्स अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड? यस, दैट इज ग्लोबली भी आपका जो क्लब लेवल पे फैसिलिटीज हैं, दे आर यूजिंग चाइनीज टर्फ्स। चाइनीज ओके टर्फ इज नॉट बैड, इट्स एक्चुअली वन ऑफ दी बेस्ट टर्फ्स जो ओके चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। तो वो आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल रिक्वायरमेंट बिल्कुल मीट करती हैं, डेफिनेटली। हाँ, जो आपके लोकली मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बिल्कुल एज पर व्हाट वी मेक एट एनसेल पाकिस्तान, वी मेक इट एज पर जो आपके इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, जो आपके एफआईपी के रूल्स हैं, और एज पर दोज मेजरमेंट स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्टली। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट होता है कि शायद इधर लोकली जो है वो आप मीट नहीं कर हाँ सकते, तो हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बिल्कुल इंटरनेशनली जो ग्लोबली कोर्ट्स चल रहे हैं उसी तरह स्टैंडर्ड्स के। हैं। वी हैव मेनी प्लेयर्स who comes to Pakistan to play paddle, to participate in tournaments, they play here. मतलब अभी तो very recently कुछ रैंकिंग प्लेयर्स भी आए हुए थे from the top ranking of the world, global अच्छा ranking के, they played here, they had a great experience, कोर्ट लोकली बने हुए थे, टर्फ से थी। तो अब ग्लोबली एक चीज डिफरेंट आ जाती है, जो इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन है ना, जो उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है फ्रॉम द कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वो चेक करते हैं कि टू द डॉट क्या स्पेसिफिकेशंस ठीक है, बट वी स्टिल मीट दो स्पेसिफिकेशंस। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि ना हो। वी कीप अ वेरी स्ट्रिंजेंट जो उसको चेक्स एंड चेक। बैलेंसेस। नाइस, दैट्स गुड टू हियर। सो मतलब पैडल जो यहाँ पे हो रही है इट्स हैपनिंग एट द वेरी हाईएस्ट लेवल। Yes, it's Perfect. at par with the global standards. Okay, perfect. Perfect. That's good to know. Perfect. So we have now talked about the location, उसकी cost जो है वो you need to keep that into consideration. Then you have to consider court की cost, और ideally अगर आप बना रहे हो, I think most of the people they start with 2 courts. 2 courts. That's like the standard, right? Yes, minimum 2 courts. ठीक है। Most of the people. उसके बाद जब ये सारा आप लोगों ने स्टार्ट किया, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट एवरीथिंग ऑपरेशनल टू द पॉइंट के जहाँ पे अब पहला क्लाइंट जो है ना आना शुरू हो गया?
उसमें कितना टाइम लगा? So in construction, it took us around 2-3 months, Okay. roughly 2-3 months में you get everything done. आपका सारा client from the start, from the vision till the construction, in the opening, it took us 3 months. ठीक We है. started in late January and we opened on 25th April. जो ऑफिशियल ओपनिंग की थी, वरना तो हम मतलब खेलना हमने खुद इंटरनली तो शुरू कर दिया था फर्स्ट ठीक है. वीक ऑफ अप्रैल से. अच्छा ठीक है. So 25th April 2025, right? जी. It was open to the public. So अच्छा, अब now that you've opened this, अभी बिल्कुल new facility है, तो what was the response like at that time to what the response, or let's say if we were to talk about occupancy rate, what's that like now? So when we opened back in April, the response was phenomenal. Okay. मतलब 2-2 3-3 दिन आपको बुकिंग्स नहीं मिलती. अच्छा, that's good. तो लेकिन राइट नाउ आई वुडंट से कि जो आपका प्लेयर है या जो आपकी डिमांड है दैट डिक्रीज्ड. ठीक है. इट रियली डिडंट. आपकी डिमांड, व्हाट वी हैव नोटिस्ड, जो हम अपना इंटरनली देखते हैं, डिमांड आपकी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है. ठीक है. बट व्हाट आई फील लाइक व्हाट हैपेंड इज, जो लोग कह रहे हैं कि पैडल में एक बबल बर्स्ट हुआ है, वैसा नहीं हुआ. बट आई फील लाइक कि आपका सप्लाई जो है वो डिमांड से भी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हुई है. ठीक हो गया. ठीक है, मतलब डिमांड अभी इतनी नहीं है जितने कोर्ट्स आ गए, जिस वजह से ऑक्यूपेंसी हो रही है. आपकी जो सप्लाई है, वो आपके जो कोर्ट्स हैं, द स्पीड जिससे वो ग्रो कर रहे हैं, वो तो मतलब बहुत ज्यादा है. वो इट्स फिनोमिनल. वो आपका, इफ वी आर टॉकिंग इन नंबर्स, तो मेरे ख्याल से यू गेट टू सी अ न्यू फैसिलिटी बीइंग ओपनड इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एवरी 2 weeks. Okay, and I'm guessing the number would probably be higher in Lahore and Karachi. Yes. If they haven't reached that, threshold. अगर वो नहीं हुआ, लेकिन तो इस्लामाबाद में तो और पिंडी में तो आई बिलीव वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट कि अच्छा, प्लेटू हिट कर लिया. अब इससे ज्यादा नहीं होगा. इससे ज्यादा होगा, लेकिन आई थिंक आफ्टर 1 or 2 years, क्योंकि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी, मोर पीपल विल गेट इन्वॉल्व, ज्यादा लोग और खेलना शुरू करेंगे, तो वो डिमांड ग्रो करेगी. लेकिन फॉर द नेक्स्ट 1.5 years, इस्लामाबाद, Rawalpindi is not the market to open new paddle courts. We are also searching new cities. We are trying to expand. तो उसमें हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को तो हमने कंसिडर ही नहीं कर रहे. We are going to tier 2 cities and then tier 3 cities. So that's interesting because मेरा अपना personally जो है ना, बहुत ज़्यादा मूड था to open a paddle court. अब उस तरह नहीं है, but I'll tell you why I didn't go for it, and it's because of one of the things that you said कि उस वक्त ना एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि पैडल, क्योंकि सिंस इट वाज ग्रोइंग सो रैपिडली, तो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी था कि इट्स अ फैड, it's going to go away. Yes, I've been hearing this. हाँ, तो वो what do you think, based on what you've said कि यार अब मतलब डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी भी, but globally is the trend still increasing, or do you feel like कि नहीं अब थोड़ा कम हुआ है? So you talked about fad. I would say it's flashy. Okay. Sounds flashy, looks flashy, but it's not really a fad. Demand is growing. ठीक है. Globally भी और आपका locally पाकिस्तान में भी अगर आप trends देखें तो it is indeed the fastest growing sports in the world. मतलब इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो comparatively pickleball, it's growing very fast. It's growing fast in America, आपका जो North America, South America and India. ठीक है. But other than that, more pickleball versus paddleball में paddle, yes. Both are entirely different sports. Both are racket sports. Both are played with paddles. लेकिन उनकी बॉल डिफरेंट है, कोर्ट डिफरेंट है. मतलब एक डिफरेंट स्पोर्ट कर लें आप, ये वही बात हो जाती है. जिस तरह पैडल और टेनिस एक डिफरेंट है. Definitely. Pickleball is more similar to or resembles more with ping pong and badminton, I would say. ठीक है. Resemble with paddle at all. वो बहुत डिफरेंट चीज है. Adoption लेकिन I think पैडल की ज्यादा है. पैडल की ग्लोबली ज्यादा है. अच्छा, ठीक लेकिन अगर आप मार्केट वाइज देखा जाए तो इंडियन मार्केट, अमेरिकन जो आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, उसमें जो है अडॉप्शन पिकल बॉल की ज्यादा है. अच्छा, पैडल से. लेकिन अगर आप यूरोपियन साइड पे जाते हैं और आप अपनी एशियन में भी आ जाते हैं तो, और आप जीसीसी में भी चले जाते हैं, तो पैडल इज ऑन द बूम. ठीक है. फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड. पैडल मार्केट राइट नाउ ग्लोबली जो वैल्यू है उसकी, पैडल मार्केट की ग्लोबली की, वो hundreds of millions of dollars में है. अच्छा. जो प्रोजेक्शन अभी आ रही है, इट वुड रीच $1 billion वेरी सून. इन There's going to be $1 billion industry. Yes. ठीक है, क्योंकि अब recent years में I feel like
रेगुलेट भी हो रही है डिफरेंट जगहों पे, एंड यू नो स्पीकिंग ऑफ रेगुलेशन, you mentioned you're part of the Pakistan Premier, what do you say? PPL, Pakistan Premier League. Premier League, Paddle Premier League. Sorry, Paddle Premier हाँ, League. PPL, right? Pakistan Paddle, या नहीं, 3 Ps. Premier Paddle League. Premier Paddle League, ठीक है. सॉरी यार, वो न्यू चीज है ना, तो वो अभी आपने उसका मुझे पता भी कंफ्यूज कर दिया था, हालांकि हमारा रोज का है, तो इट्स प्रीमियर पैडल. that's okay. ये कैमरा नर्व्स जो है ना थोड़े से हम दोनों के वो में, तो that's okay. अच्छा, तो what's that about? क्या है ये? Why have you joined them? Or you know, what's it changing or bringing into Pakistan? So Premier Paddle League, PPL, is a very interesting concept. It's a new concept in Pakistan. At PPL, what we're trying to do is, it's a vision of our CEO, Mr. Basim Abdullah. He pitched us and pitched me. I really liked the vision. I joined him, and what we're doing right now is we're trying to make an ecosystem of a commercialized paddle as a sport. Okay. So what we're doing is we're integrating all the players in the industry within the paddle ecosystem. Likewise, we are giving chance to the players, to the corporate, to the clubs, to the franchisees to commercialize the sports and get whatever you can get out of it. Okay. So, in आसान लफ्जों में अगर आपको मैं बताऊं तो PPL is a franchise club based league. Okay. League system. It's similar to what PSL or IPLs of the world are doing, but in paddle. Right now, PPL is launched, and we are starting the first leg in Islamabad from 15th of January, which is tomorrow. Tomorrow is our opening ceremony at PPL. PPL is further divided into 3 cities. KLI. We are covering Karachi, Lahore, Islamabad. In the first phase, we have started from Islamabad. So it's a year-long league. The first quarter of 2026 will be Islamabad. Jan, Feb, March will be Islamabad. Second quarter will be Lahore. Third quarter will be Karachi. And the fourth quarter of the year will be a Champions League. Now, what is a Champions League? Champions League will be between the winners of the each city. Each city. तो उनके जो each city के winners होंगे वो they will come in Champions League. PPL का जो price point है, what we're rewarding to the clubs and the players, it's phenomenal. मतलब other than cricket इतना पैसा किसी sports में what's the figure? किसी में नहीं लगा. So it's the prize money we are giving out is 30 million Pakistani rupees. 3 करोड़ रुपया आता है, जो कि further divided है, segmented है into 3 different cities. जो KLI में 1 करोड़ इस्लामाबाद का, 1 करोड़ लाहौर का, 1 करोड़ आपका कराची का. अच्छा, ठीक है. So this is for the whole league including the Champions. No. Champions League included नहीं है. अच्छा, that's separate. Prize money अलग है. अच्छा. Which we haven't revealed as of now. वो हम later stage पे reveal करेंगे, but it would be something to look forward to. हाँ, मतलब अगर लीग का इतना है तो I'm guessing कि चैंपियंस का फिर तो PPL का जो अब मैं आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ. PPL का एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें हम फर्दर एक सिटी में डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में. 3 कैटेगरीज है अल्फा, ब्रावो, चार्ली. फॉर अ लेमैन्स, अल्फा, ब्रावो, चार्ली इज प्रो, सेमी प्रो एंड इंटरमीडिएट प्लेयर्स. ठीक है. तो उसमें हम उन तीनों को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं और उन तीनों को क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू ग्रो देमसेल्व्स विद इन द स्पोर्ट एंड ग्रो देमसेल्व्स विद इन दिस इकोसिस्टम. अब पाकिस्तान में यूजुअली अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक स्पोर्ट्स को उस तरह ट्रैक्शन नहीं मिल सकता जिस तरह वो प्लेयर डिजर्व करता है ना. वो स्पोर्ट्स को मिलता है, लाइकवाइज वो फिर प्लेयर को भी नहीं मिल पाता. पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ क्रिकेट ही है जिसपे पैसे लगते हैं, जो कमर्शलाइज सही से हो सका है. एग्जैक्टली. एक PSL अगर है तो वो एक लीग एक ही है. मतलब कमर्शियल स्पोर्ट हमारे पास नहीं है जो हम स्पोर्ट को कमर्शलाइज कर सके. क्रिकेट है, उसके बाद आप फुटबॉल में some players are doing very good stuff, उसमें फुटबॉल है. thirdly अब पैडल है. पैडल क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है. तो इसमें आपका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉम द स्पॉन्सर्स एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्ट हो रहा है. और जब किसी चीज़ में कैपिटल आना शुरू हो जाए तो वो तो फिर बूम पे जाती ही जाती है. तो हम उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम
जो स्पोर्ट्स एज उसको भी ग्रो कर सके, और प्लेयर्स जो कि प्लेयर्स पाकिस्तान में उनको उस तरह चांस नहीं मिल रहा कि वो ग्लोबली compete कर सके, चांस ऐसे नहीं मिल रहा कि फाइनेंशियली भी चांस नहीं मिल रहा, आसान नहीं ठीक है। होता बाहर जाके खेलना हाँ और एफआईपी डेफिनेटली। टूर्नामेंट्स में खेलना, तो उनको हम एक इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाना चाह रहे हैं, अच्छा प्लेयर्स जबरदस्त। देमसेल्व्स को हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक प्लेयर ब्रांड बनेगा, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, वो लीग का पार्ट होगा, लीग की तरफ से भी जाएगा, और लीग ही जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, जो आपके उनको स्पॉन्सर विनर्स करेगी। हैं, उनका एक पूल बना के उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी स्पॉन्सर कर रही अच्छा है, दैट इज पार्ट जबरदस्त। ऑफ द लीग। जबरदस्त। तो इस तरह ये पीपीएल, दिस इज व्हाट पीपीएल इज। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा रिसेंटली सोशल मीडिया या टीवी पे ही आई गेस क्रॉस करते हुए आई वंस सॉ, आई डोंट नो इफ इट वाज अ लीग, अ टूर्नामेंट और व्हाट इट वाज, बट उसमें कंट्री वाइज जो है ना पैडल का वो हुआ था। आई थिंक आई सॉ अ मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस कतर, इस तरह की कोई चीज़ थी। अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसकी जो टीम है फिलहाल वो कैसे डिसाइड होती है, मतलब इज देयर अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन विद इन पाकिस्तान जो इस तरह पैडल को वो करके फिर इंटरनेशनल फिलहाल लोगों को compete करवा रही है, या हाउ डज दैट वर्क राइट नाउ, और उसमें पीपीएल का क्या पार्ट होगा? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पीपीएल इज अ टोटली प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली इट इज affiliated with some associations, ठीक but है। वो एक प्राइवेट एंटिटी है, एक ठीक है। प्राइवेटली रन कर रही है। जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने कतर में देखा था, दैट हाँ। वाज अ एफआईपी टूर्नामेंट, इंटरनेशनल पैडल ओके। फेडरेशन, एक टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान के चंद प्लेयर्स, आई बिलीव 6 के 8 गए थे, ठीक है। और दे रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान देयर, एंड दे क्वालिफाइड इन द टॉप 16 और टॉप 32, आई डोंट रिमेम्बर इट, लेकिन वो ठीक था, है। आई वुड कमेंट ऑन दैट। ठीक है। लेकिन वो जो लेके गए थे, वो पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो अभी एग्जिस्टिंगली है, अच्छा ठीक है। वो उनकी तरफ से गए थे, उनके साथ गए थे। इट इज बीइंग ऑपरेटेड इन कराची, पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है वो लेके गए थे, उन्होंने ही उसका सारा किया था, और वो एक एफआईपी टूर्नामेंट पे उन्होंने एक compete किया था, which is a very big thing for players in Pakistan. This should happen very often. We should get opportunities to compete in FIP tournaments. तो वो उनकी तरफ से थी। As for the government aspect जो आप कह रहे हैं कि whether they are ना कोई पीपीएल और गवर्नमेंट का associated कोई वो with होगा। federations हाँ। और PPL, देखिए जब स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स में इवेंचुअली पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है, तो वो भी पैडल में भी यही चल रहा है, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट विल स्टेप इन और उसको एक स्ट्रक्चराइज करेगी, स्ट्रक्चर बनाएगी और एफिलिएशंस देगी। अभी राइट नाउ जो आपकी फेडरेशन और एसोसिएशंस हैं, दे आर रनिंग इंडिपेंडेंटली, अभी गवर्नमेंट का उसमें नहीं है। ठीक है। जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो दे आर वर्किंग ऑन इट। अब इन ओके। इस्लामाबाद, वी आर सिटिंग इस्लामाबाद, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन इस्लामाबाद सीडीए आपकी एक तरह से इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है उसको डील करती है। सीडीए इज डूइंग वंडरफुल जॉब। सीडीए के जितने भी आपके मल्टीपर्पज पार्क्स हैं इस्लामाबाद में, यू नो एवरी सेक्टर हैज़ वन, और उसमें सीडीए मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाती है। उसमें सीडीए ने ऑक्शन किए हैं अपनी डिफरेंट, हर आई थिंक आई बिलीव 7 के 8 उन्होंने पार्क्स में एक सर्टन लैंड जो है वो ऑक्शन किया है थ्रू रेंटल्स। उनका मॉडल थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन्होंने ऑक्शन किया है जिसमें उन्होंने, ये इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। उसमें उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जो के इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको इनवाइट किया है कि पार्टनर विद अस, टेक लैंड फ्रॉम अस ऑन लीज और ऑन अ पार्टनरशिप बेसिस, ठीक है। रेवेन्यू शेयरिंग। revenue sharing, ठीक है। and build an infrastructure ठीक है। and commercialize this एंड रन sport, इट। run हाँ। it and operate it। उसमें सीडीए अपना एक certain chunk रख रहा है और वो चल रहा है। एंड मतलब अगर आपने देखा हो तो F6 में there's a very well known club by the name of Central, वो इसी मॉडल पे चल रहा है, and it's doing wonders माशाल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा क्लब है, सीटीए का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट भी इंसेंटिवाइज कर रही है और मतलब इन्वॉल्व हाँ, हो रही है पैडल में लाहौर में एक्टिवली। भी एंड पंजाब में भी सिमिलरली ऐसा ही एक मॉडल आई हर्ड अडॉप्ट किया है उन्होंने, और दे ठीक है। डूइंग स्टफ देयर एज वेल। Perfect. Perfect. ठीक है. Now, coming back to PPL, you said that it's going to be a year-long league. You're starting with Islamabad. First 3 months इस्लामाबाद से आप कर रहे हैं, तो अभी कितनी टीम्स हैं जो compete कर रही हैं? सो पीपीएल में ईच सिटी हैज 6 फ्रेंचाइजेस, Okay. जो कि सेट फ्रेंचाइजेस थी, वो ओपन ऑक्शन के थ्रू जो है वो सेल हुई हैं, जिसमें से
टोटल जो हमारे पास जो LOIs थे वो 10 पार्टीज से थे, जिसमें से ओपन बिडिंग के थ्रू 6 were able to get those franchise. 6 Perfect. franchises थी. And you're one of the franchise owner as well? Surprisingly, I am one of the franchise owner. I was the franchise owner. Later, I joined PPL. अच्छा, you joined as a partner. ठीक है. Initially, I was the franchise owner. I bought a franchise. तो उसके बाद पहले franchise जो PPL के हमारे फाउंडर हैं उनसे जब डिस्कशन होती है, मतलब उनका एक विजन था, तो ही wasn't expecting कि इतना उसको ट्रैक्शन मिलेगी इनिशियली, बट 10 लोगों का 10 पार्टीज का वो उन 10 पार्टीज का जो कि वो PPL के रूल्स को फॉलो करते हो, LOI आना, वो that was surprising for him as well. The turnaround was good. Turnaround was very good. The bidding process, I was there. I did an open bidding and it was very difficult for me to get a club at a reasonable price. जो मैंने price point सोचा था उससे मुझे काफी हाई जाना पड़ा. ठीक है, मतलब proper bidding war हुई. हाँ, proper bidding war हुई थी इसमें जो आपका था franchise club. उसके बाद after that it piqued my interest, तो मैंने उसको PPL उनसे ज़्यादा discussion हुई पूरी PPL की टीम से. They invited me to join them. Let's grow this together. तो it really intrigued me. I joined them officially. तो उसके बाद player bidding जो थी ना, that was the real war. क्योंकि पाकिस्तान में जो A कैटेगरी प्लेयर है, जो आपका प्रो प्लेयर है, वो लिमिटेड प्लेयर है. तो आपके 6 फ्रेंचाइज क्लब्स थे, तो आपको 12 प्रो प्लेयर चाहिए था हर सूरत में. और है 12, 13, 14 से ज्यादा ही है. लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि बाबर आजम्स ऑफ द PPL, क्रेम डे ला क्रेम, क्रेम डे ला, वो 2-4 ही होते हैं, 4-6 ही होते हैं, और उन पे जो है द रियल वॉर टुक प्लेस. तो दे होस्टेड द बिडिंग इन सिनी गोल्ड. वो एक ओपन थिएटर में हुई थी. तो उसमें जो हाईएस्ट बिड थी वो फॉर अ प्लेयर इन अ स्पोर्ट्स जो थी वो इट वाज अराउंड 7,40,000 फॉर इंडिविजुअल प्लेयर in a sports category. And that money goes to... So that money, by PPL's bylaws, that money is further divided into goes to 2 separate ways. 40% of that is retained by the PPL. By the organization. By the organization. 60% goes straight to the player. Okay. Now the organization at PPL, we are trying our best to reward the players as much as we can. Players are not only getting the bid value, they are getting 60% of the bid value. They are getting the perks. उनके एक engagement fee के तौर पे उनको PPL pay कर रहा है, travel around sort of a thing. ठीक है. That's paid monthly. That's paid for the season. Okay. For the season. ठीक है. Entire season they are playing. ठीक है. उनकी जो कैटेगरी का सीजन है. एंड उसके अलावा जो आपकी प्राइज मनी है, which is huge. A कैटेगरी की अगर आप प्राइज मनी देखें, विनर इज 1.2 मिलियन आई बिलीव. तो 1.2 मिलियन में से भी जो 35% चंक है वो प्लेयर को जा रहा है. ठीक है. तो प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे जो है, प्लेयर जो है वो बेशक जीते या बेशक हारे, प्लेयर they're still making money off of this. They're still making money. ठीक है. यूजुअली इस तरह नहीं होता इसमें पैडल में और किसी भी स्पोर्ट में इन पाकिस्तान, अदर देन क्रिकेट. लेट्स जस्ट मेक क्रिकेट एन एक्सेप्शन इन पाकिस्तान. किसी स्पोर्ट में नहीं होता. प्लेयर, all the players who are participating in PPL are making something. ठीक है. और as for the clubs, 4 out of 6 clubs are making money. अच्छा, perfect. They're rewarding top 4 clubs. तो 6 में से 4 तो पैसे बना रहे हैं. ठीक है. जो पहले 2-3 है वो तो प्रॉफिट में जा रहे हैं. ठीक है. जो बॉटम वाले हैं, चौथा है वो भी ब्रेक इवन रीच कर रहा है. जो 5-6 हैं उनमें क्लब जो है वो उस तरह पैसे नहीं बना सकेगा. प्लेयर बनाएगा. प्लेयर उनका भी बनाएगा. प्लेयर बनाएगा. अब दैट डिपेंड्स कि कितने पैसे कौन बना रहा है. दैट्स द गेम. तो 1-2 जो है वो तो उनके तो प्लेयर भी टॉप पे जा रहे हैं, क्लब्स भी टॉप पे जा रहे हैं. तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज टू रिवॉर्ड एवरीवन एंड एवरीवन इज गेटिंग रिवॉर्डेड. जो 5-6 5th 6th पे आता है, ऐसा नहीं है कि वो भी पैसे नहीं बना रहा. वो भी अपनी रिकवरी कर सकता है थ्रू स्पॉन्सरशिप्स. जब आप एक फ्रेंचाइज क्लब लेते हो तो a lot of brands get attracted. They sponsor you, yes. They sponsor your team, they sponsor your clubs, they sponsor your kids. उनकी brand recognition होनी चाहिए होती है, visibility चाहिए होती है. तो वो PPL भी दे रहा है और वो clubs खुद भी दे रहे हैं. तो all in all सब पैसे बना रहे हैं. At the end of the day, it's a commercial sports. We are trying to commercialize paddle. That's what we are doing. तो उसमें हम ऐसा नहीं है, उसमें हम टेक सेक्टर की भी बहुत हेल्प ले रहे हैं. जहाँ पर भी हमें आ सकता है, वी आर पार्टनरिंग अप विद डिफरेंट आपकी जो टेक कंपनीज हैं, जिसमें हमें कैमरा सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट हैं, हमारे स्कोरिंग के लिए डिफरेंट टेक पार्टनर्स हैं, नॉट लोकली बट ग्लोबली एज वेल. हमारे इसमें जो स्कोरिंग पार्टनर्स हैं वो भी मतलब दे आर ऑपरेटिंग इंटरनेशनली.
और जो आपके बाकी लाइव स्ट्रीम पार्टनर है, एवरी मैच, सो आई वुड लाइक टू कमेंट, एवरी मैच is being live streamed on Myco. Myco is Okay. now a big player in Pakistan. Yep. We have partnered up with them, तो वो भी हमारे एक ऑफिशियल है. Every match is being live streamed on Myco. तो सरप्राइजिंगली हमारी जो प्लेयर ऑक्शन की हुई थी उसमें इट वाज आल्सो लाइव स्ट्रीम्ड ऑन माइको, और उसकी जो रीच थी, जो व्यूज थे, दे वर 365,000 Okay. live stream views on live broadcast. That's 365,000 impressive. watched live. That was impressive and shocking was for very- us, for us as well. that's very impressive. We weren't expecting this much reach and Okay. viewership. Hey, But was there a lot of marketing that went into this before you started that bidding wala process? या बस there was marketing, but if you say कि बहुत ज्यादा marketing पे pump किया था, इतना ज्यादा नहीं. ठीक है, because लेकिन getting marketing थी. a number of 3,65,000 That's huge. उसके लिए like you need to spend a good amount of money to get that much viewership. नहीं, इतना ज्यादा ठीक है. नहीं था. तो अच्छा. 365,000 एक आम बंदे के लिए तो लगता है कि क्या 3.5 लाख है, लेकिन you are running a YouTube channel. You नीश being एक चीज के from ऊपर tech इस तरह का वो industry, करना, और वो तो भी एक बिल्कुल हाँ, बहुत- I agree. बहुत That's बड़ा very नंबर impressive. था, and we were surprised as well. तो उससे भी हमें काफी कॉन्फिडेंस मिला. This is going in the right direction. We are going to the right direction. ठीक है. तो अगर ग्लोबली भी देखा जाए इस लीग को और कंपेयर किया जाए विद इन द अदर कंट्रीज, तो वो आई थिंक वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, एंड वी हैव अ 5 years प्लान. जो हमारे 5 years प्लान है, उस पे हम वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन. Perfect. So now that you've mentioned so much about PPL, and honestly it's super interesting. मुझे बल्कि खुशी हो रही है देख के कि यार people are actually doing this, और it's getting the recognition it deserves as well. अल्हम्दुलिल्लाह. So अब आपने कहा A B C tiers हैं, ठीक है, अल्फा ब्रावो चार्ली, उसमें मतलब A being pro players and so on and so forth. Do we have such talent in Pakistan, or do we have players capable enough to compete internationally? और मतलब कल को अगर फर्ज करें ओलंपिक में जो है ना पैडल आता है, तो इस तरह चांस कि यहाँ से कोई प्लेयर निकल के जो है ना कोई मेडल लेके आ रहा होगा? सो इंटरनेशनली अगर आप ग्लोबली देखें, जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं, जो आपके टॉप 100 में लेट्स से रैंक करते हैं, दे आर प्लेइंग पैडल सिंस द लास्ट डेकेड. ओके. वो एक्सपोज हुए थे उस इकोसिस्टम में, उसमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं. ठीक है. So they already have a huge head start. हेड स्टार्ट. कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान में देखें, तो जो आपका टॉप प्लेयर है आज पाकिस्तान का, जो इज रैंक नंबर 1, ही गॉट एक्सपोज टू दिस स्पोर्ट्स 2 साल. क्या नाम है? 1.5 साल. आपके टॉप टियर जो प्लेयर्स हैं, वो रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि आपका एवरी क्वार्टर आपका रैंकिंग टूर्नामेंट होता है. तो मैं आई वुड नेम देम. दे आर सलार खान, अब्दुल्ला अदनान, अहमद कामिल, समी, अजहर काची, फरहान मुस्तफा. Shout out to all these boys. तो इस तरह के प्लेयर्स हैं. ठीक है. तो जो इंटरनेशनल जो आपकी बात है, whether they are able to compete with the world number 1 right now, no. ठीक है. No, क्योंकि वो जो वर्ल्ड नंबर 1 है, उसको 10 साल का एक्सपोजर है टू द गेम और प्रैक्टिस है. इनको कितनी है? 1.5 से 2 साल टाइम लगेगा. बट दे आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. राइट नाउ इट्स नॉट लाइक कि वो टफ टाइम नहीं दे सकते. दे कैन. अब आपका FIPB जो आपका टूर्नामेंट्स होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2-3 कैटेगरीज. इसी तरह आई बिलीव गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस तरह करके. उसमें दे कैन कम्पीट इन द लोअर 2 कैटेगरीज. जो आपके टॉप कैटेगरी है इंटरनेशनल रैंकिंग वाली, उसमें एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नो. व्हाट दे नीड इज दे नीड अ स्ट्रक्चर जिसमें वो ग्रो कर सके, एक्सेल कर सके. फैसिलिटीज, इकोसिस्टम, स्पॉन्सर्स. तो that is what we're doing at PPL, precisely this. ठीक है. So that's one of the aim of PPL, to grow the sport here within grow Pakistan. the talent, polish the talent, train the talent, so they are able to compete internationally at the international stages. तो eventually within, I believe personally, ये मेरा अपना एक ज़ाती राय है, कि अगले 2 से 3 सालों में you'll see Pakistani talent, Pakistani player competing at the top level of paddle globally, inshallah. मतलब 3 नहीं तो 4 साल की ये गेम है.
the speed where we are going at, हम पहुंच जाएंगे. हो जाएगा. चलिए, हो that's good to hear, and hopefully I really hope that it happens. Players themselves are very enthusiastic about the sports. They have the right talent. Where they're lacking is structure. So I believe अगर talent हो, enthusiasm हो और structure ना हो, then it's total chaos. Guidance और direction की एक कमी है, वो उसके एक बगैर chaos होता है. So that's where we are stepping in and trying to minimize that chaos, give it structure and give us structure. Perfect. ठीक हो गया. Now we've talked a lot about PPL. Now let's just end it with, so if a player wants to register themselves with PPL, within those tiers, and he wants to get paid, how do they get in touch with PPL? And then similarly, if somebody wants to buy their own franchise, how much does that cost? Again, what does that process look like? इन दोनों चीजों का जरा मुझे बताएं. So it's very easy, मतलब to enter into PPL. PPL is open for all. Okay. Anyone, even you can come and join PPL. Very limited, बड़ी एक nominal सी registration fee है as a player. If you want to compete in PPL, you just have to pay a nominal fees of 5,000. ठीक है. Get yourself registered through our website. As a player. वो हमारा एक लिंक है, गूगल फॉर्म है, वो आप फिल करें. Get yourself registered for the. अब तो इस्लामाबाद का तो क्लोज हो गया, लीग स्टार्ट हो गई है. फॉर लाहौर और कराची, लेट्स जस्ट अस्यूम, आप रजिस्टर करते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाती है, यू गेट एक्नॉलेजमेंट. उसके बाद आप ऐड हो जाते हो उस पूल ऑफ. लाहौर कराची की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है या अभी होनी है? अभी नहीं हुई. लेटर फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगी लाहौर. और ये अनाउंसमेंट्स कहाँ पे होती है? ये अनाउंसमेंट हमारी वेबसाइट पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, सोशल मीडिया. और विद इन द जो आपके पैडल के ग्रुप्स हैं, वो पैडल के बड़े ग्रुप्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, हर सिटी का. इट्स अ क्लोज नेट कम्युनिटी. हाँ, वो एक नीश है और क्लोज नेट कम्युनिटी है, जहाँ पर एवरी प्लेयर, एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी वन हु प्लेज पैडल और हु प्लेड पैडल एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन देयर लाइफ आर उन दोस ग्रुप्स. तो वो वहां पर भी अनाउंसमेंट्स होती हैं रेगुलरली. तो वो मतलब अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पैडल, तो आपके लिए ये पीपीएल में रजिस्टर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अबाउट पीपीएल. अगर आपने 2 दफा भी खेली है, यू विल इवेंचुअली गेट टू नो अबाउट पीपीएल. तो उस लेवल पे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं. रीच है हाँ, इतनी रीच है. ठीक है. तो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं. तो आप रजिस्टर कर लेते हैं. रजिस्टर करने के बाद आप पूल ऑफ प्लेयर्स में ऐड हो जाते हैं, विच विल बी ऑक्शन. आप ऑक्शन के लिए उन पूल ऑफ प्लेयर्स में ऐड हो जाते हैं. एज फॉर द फ्रेंचाइज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू गेट अ फ्रेंचाइज क्लब, उनके लिए भी बहुत रिलेटिवली इजी है, सेम प्रोसेस है. लेकिन वो उसमें ये है कि आपको एक प्रॉपर लेटर ऑफ इंटरेस्ट बना के पीपीएल को ईमेल करना पड़ता है. फिजिकली आप सबमिट करा सकते हैं. वी हैव ऑफिस इन इस्लामाबाद. तो आप ईमेल कर दें आप विद योर डॉक्यूमेंट्स. अब इसमें एक जो हमने कंपल्शन रखी हुई है, एनीवन कैन शो देयर इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ फ्रेंचाइज ऑफ पीपीएल, बट उसमें एक कंपल्शन ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट है तो उसका बैक एंड पे एक क्लब के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए. ठीक है. वेन्यू होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइज मॉडल, इट्स अ लीग मॉडल, इट्स अ home and away model. Every club should have their home base. Okay. So in your case it was the Paddle District. Paddle District, my own club. So every club should have their home base. तो वो इतना मुश्किल नहीं है. अभी राइट नाउ जो इस्लामाबाद के 6 फ्रेंचाइज हैं, उनमें से 2-3 ऐसे हैं जिनकी अपनी होम बेस नहीं थी. दे पार्टनर्ड अप विद अ वेन्यू और उन्होंने उनके साथ इन पार्टनरशिप में बिड किया. ये एक कंपल्शन है सिर्फ, दैट्स ऑल. उसके अलावा you need to have a venue or you need to be associated with the club. You need to have a home base. Okay. वो जरूरी है. उसके बगैर होम एंड अवे मॉडल नहीं बनता. ठीक है. बिकॉज द मैचेस एक आपके उसमें एक दूसरे अवे वाले जो लीग का एक मॉडल होता है, वो नहीं बनता फिर. तो वो इसके लिए जरूरी है. अब जिस तरह पीएसएल में देखें तो इस्लामाबाद का कराची में भी होता है, कराची के साथ कराची का इस्लामाबाद में भी होता है. तो इट्स सिमिलर टू दैट. तो वो एक जरूरी है, वो कंपल्शन है. उसके अलावा आप लेटर ऑफ इंटरेस्ट अपना शो करेंगे और उसकी एक मिनिमल सी फीस है, वो आप पे करेंगे रजिस्ट्रेशन की. How much is that fee? For franchise it's 50,000. Okay. In Islamabad, like for players it was 5,000. 5,000 in paddle is nothing. आपकी 1 घंटे की बुकिंग ही सिर्फ कोर्ट की 7,000 है. तो प्राइस पॉइंट उसमें हमने बहुत ज्यादा कम रखा हुआ है to attract as many players and give
चांस टू ऑल द प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन पीपीएल। आपने 5,000 देना है, उसके बाद आपने सिर्फ पैसे बनाने हैं इफ यू गेट सिलेक्टेड। तो उसमें भी 50,000 है फ्रेंचाइज के लिए, वो 50,000 भी लेटर ऑन अगर इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली बिड एंड विन द बिड, वो 50,000 जो है उसमें एडजस्ट हो जाता है ठीक आपकी है, वैल्यू में ठीक है, फ्रेंचाइज का। when you're buying हाँ that franchise. Makes sense, perfect. I think we should have probably discussed this earlier, but चलें अब end हो रहा है तो हम उसी पे कर लेते हैं. Sure, So you mentioned the price is, as of right now, you pay, I believe, the average is 7,000 per hour, yes right? Considering कि अब इतनी ज़्यादा, you know, and we earlier talked about this as well, कि supply ज़्यादा हो गई है, demand comparatively उस तरह growth जो है ना supply की ज़्यादा हुई है, demand की उस तरह नहीं हुई. तो do you see कि अब जो है ना, now that the supply is high, demand कम है, तो एक price correction भी होगी और ये 7,000 वाली amount कम होगी, because when you compare this to cricket and football, उसमें significantly, एक तो वैसे ही it's a team sport, ठीक है, तो उसका घंटा जितने का भी होता है तो यू नो डिवाइड हो जाता है बॉयज के अंदर और सारा, तो वो कम हो जाता है. पैडल में आपको पता है जी 4 बंदे हैं, इतने नहीं करने हैं, तो वो डू यू सी दैट प्राइस करेक्शन 1750 हैपनिंग? सो इट ऑलरेडी हैपेंड अच्छा, इस्लामाबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी सम फैसिलिटीज. अब वो प्राइस करेक्शन कैसे हो रहा है, वो दो तरह से हो रहा है. एक तो थ्रू जो आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप्स है उस तरह हो रहा है. क्लब सर पार्टनरिंग अप विद डिफरेंट फिनटेक्स, आपके बैंक्स हो गए, आपके जैस कैश एक बहुत बड़ा प्लेयर है इन पैडल इंडस्ट्री. मैसिव डिस्काउंट्स. उन्होंने एक पैडल का जो ये जो प्राइस वाला एलिमेंट है इसको डिसरप्ट कर दिया, फुली डिसरप्ट कर दिया. हाउ मच आर दे ऑफरिंग? 40 So off? initially they were offering 50% off Okay. through Jazz Cash cards. Now they are offering 30% off. 2026 में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए उन्होंने 30% किए. इनिशियली वो सारा खुद बेयर कर रहे थे, अपना बर्न कर रहे थे. अब क्योंकि उन्होंने एक मार्केट डेवलप कर दी है और कस्टमर उस तरह से बेस बन गई है, हाँ. कस्टमर जो है उसको ट्रेन कर लिए है और एक लॉयल्टी बना ली है, तो अब वो क्लब्स के साथ भी स्प्लिट कर रहे हैं डिस्काउंट में. ठीक है, तो मतलब वो कुछ सर्टन बर्न वो करते हैं, कुछ क्लब करता है. ठीक है, तो इस तरह प्राइस ड्रॉप हो गई है ऑलरेडी. ऑलरेडी हो गया मार्केट 30% तो आपका 50% हुई थी फॉर द 3-4 मंथ्स जैस कैश के थ्रू, अब 30% हो गई है. ठीक है. तो अदर देन दैट जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी आपको पता है कार्ड्स पे बहुत डिस्काउंट देते हैं, वो भी दे आर आल्सो पार्टनरिंग अप विद अ लॉट ऑफ वेन्यूज, उस पे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स आ रहे हैं. तो प्राइस पॉइंट जो है वो ऐसे डिसरप्ट हो रहा है. ठीक है. अब कुछ क्लब्स हैं जो खुद भी कर रहे हैं टू कम्पीट, क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास तो खैर है ये पार्टनरशिप बैंक्स, लेकिन अगर मेरे पास ना होता तो मैं कम्पीट ही नहीं कर सकता था. फिर यू हैड नो अदर ऑप्शन बट तो मुझे खुद करनी पड़ती, रिड्यूस द प्राइस, खुद करनी पड़ती और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. तो जो जिन क्लब्स के पास अभी ये ऑनबोर्डिंग नहीं हुई उनकी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो खुद से बेयर कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो ड्रॉप हो चुका है. अभी IIMs व्हाट आई एम सीइंग इज कि ये प्राइस जो है कहीं स्टैटिक होगी अराउंड 5,000 पर आवर पे आके ये कुछ अर्सा चलेगी. ठीक है. आई थिंक दैट्स more digestible, I would say, वो कि आपका 1,000 पर पर्सन 1750 से 1250 पे आ जाता है सीधा सीधा. लेकिन अब इसमें अब ये भी है, फिर भी स्टिल इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट कंपैरेटिवली, क्योंकि जो रेगुलर खेलते हैं वो 1 घंटा तो खेलते नहीं है, फिर वो मिनिमम 2 घंटे खेलते हैं. मिनिमम जो आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं वो मिनिमम 2 घंटे खेलेंगे, तो वो फिर आपका प्राइस पॉइंट 10,000 पे 2 घंटे चले जाते हैं, ठीक है, विच इज 2,500 पर आवर पर पर्सन. मेक सेंस. तो क्रिकेट और फुटबॉल से तो नहीं कंपैरिजन, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि टीम स्पोर्ट है, वो 10 लोगों में डिवाइड होता है और वो रिलेटिवली चीपर भी है. और इसका प्राइस पॉइंट ज्यादा होने का एक बहुत बड़ा रीजन भी ये है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत महंगा है, कंपैरेटिवली उसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्लास है, जो टर्फ है, टर्फ इंपोर्टेड है. जब इंपोर्टेड एलिमेंट कहीं भी आ जाता है उस पर ड्यूटीज, टैक्सेस, टैरिफ्स, पाकिस्तान में आपको पता ही है वो क्या हाल है. तो उस वजह से अब एक क्रिकेट अरीना बनाना हो, वो आप कोई अरीना आप 2-3 मिलियन में बना जाते हो, 3 मिलियन. ठीक है. आपको एक पैडल कोर्ट आपने बनाना हो, मिनिमम 2 कोर्ट्स और साथ कैफे एक छोटा सा बनाना हो, सिटिंग एरिया, तो वो आप कहीं मतलब 15-20 मिलियन पे बात चली जाती है. तो वो फिर आपने कहीं से तो रीकूप करनी है वो अपनी जो पैसे आपने लगाए हैं. आफ्टर ऑल यू रनिंग अ बिजनेस, डेफिनेटली, तो आपने पैसे तो कमाने हैं. तो उस वजह से इसका प्राइस पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा है बाकी स्पोर्ट्स से. ठीक है, मेक सेंस, परफेक्ट, awesome. So Abdullah, let's just, and you know, amazing conversation by the way. So let's just end with, if anybody who's watching, whether that's, you know, someone that's interested in paddle, या कल को वो अपना paddle court खोलना चाहते हैं, ठीक है, somebody wants to
वो भी इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, वो भी इस ग्रोथ और इन चीज़ों से पैसा बनाना चाहते हैं। तो what are some of the things that person should look for, they should consider? यार मतलब 2026 and beyond के लिए आपके पास क्या टिप्स होंगी if somebody wants to open their own paddle court? So if you want to open your paddle court, I would say contact me. टेंसाइल, हाँ टेंसाइल टेंसाइल, पाकिस्तान। हाँ लेकिन डिस्काउंट देंगे, हाँ हाँ, आपके रेफरेंस आएंगे, देंगे डेफिनेटली। कोड रेफरल सकलैन, ठीक है हाँ। तो लेकिन अब अगर आपका क्वेश्चन को मैं सीरियसली बताऊं तो फैक्टर्स व्हिच यू शुड कंसिडर इज द मार्केट यू आर एंटरिंग। ओके मार्केट, व्हेन आई मीन मार्केट, मेरा मुराद है आपकी जो लोकल मार्केट है, ठीक है, आपकी जो सिटी मार्केट है, उसमें आई डोंट मीन पाकिस्तान, जो सिटी मार्केट है उसमें आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कि किस गलतियां शहर में खोल किस रहे हैं, शहर में आपने खोलना ठीक है, क्योंकि अभी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अभी आपके बहुत शहर रहते हैं, अभी आपका सिर्फ केएलआई है, उसके अलावा आपके पास हाँ मेजर अडॉप्शन तो इन्हीं जगहों आई पे, बिलीव फैसलाबाद एक्सपोज हो चुका है, उधर काफी ठीक है, ज्यादा अडॉप्शन है, और 2-3 और इस तरह के ठीक टियर है, 2 शहर है, बाकी आपका पूरा टियर 2 पड़ा है, टियर 3 पड़ा है। हाँ एंड इफ यू सी द ट्रेंड्स, जिस तरह पैडल ग्रो किया है, तो वो ठीक है, इवेंचुअली वही पाकिस्तानी कौम है, वही यंगस्टर है, उसने खेलना है, ठीक है, और वो अडॉप्शन आनी ही आनी है सूनर और लेटर। तो ठीक है, आपको उस मार्केट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब तो तो केएलआई से हट के जो है ना, हाँ हाँ, केएलआई में नहीं है अब जगह, ठीक है, टू बी वेरी अच्छा मतलब ऑनेस्ट। जो केएलआई में खोलना चाह रहे हैं इस वक्त वो रिस्की है, केएलआई आए तो वेरी रिस्की है, मैं क्योंकि हाँ आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो वो रिस्की है। लेकिन केएलआई में जगह बनेगी साल डेढ़ बाद, इस्लामाबाद में बनेगी ठीक है, इवेंचुअली, साल डेढ़ बाद मतलब क्योंकि बनेगी। एक्सपैंड हो रहा है, इज दैट व्हाई? मार्केट ग्रो कर रही है, जो ठीक आपका है, प्लेयर बेस है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा ग्रो की है, तो इवेंचुअली वो जब इक्विलिब्रियम रीच होगा और डिमांड जो आपकी ज्यादा होगी, तो दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी इज। तो आई वुड से कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप थोड़े से वो दूसरी तरफ जाएं, सब जो आपका अर्बन इस्लामाबाद है वो तो नहीं अब रहा, तो आप रूरल इस्लामाबाद की तरफ एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस। B17 D17, वो भी भर गए हैं। अच्छा वो भी, हाँ, उससे भी ज्यादा उससे भी आगे मतलब एयरपोर्ट की तरफ चले, हाँ, एयरपोर्ट की तरफ अच्छा चले जाए। ठीक है, B17 D17 सब में पैडल कोर्ट्स खुल चुके हैं, आप अच्छा कोई जगह नहीं बची इधर इस्लामाबाद में। impressive तो साल डेढ़ बाद, ये मेरा अपना पर्सनल एक वो है, opinion है, ओपिनियन है, साल डेढ़ बाद आपको इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी नहीं। अभी देखें, द एंड गोल इज के आप वेदर यू आर पैशनेट अबाउट पैडल और यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू वांट टू कमर्शियलाइज इट एंड उसको आपने कैपिटलाइज करना है, तो आई डोंट थिंक कि आपका सिटी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। आपकी पैसा बनाना है तो धंधा करना है तो आप कहीं और हाँ जाएं और किसी और करें, जगह पे कर लें, हाँ। और करें, डेफिनेटली करें, और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है उधर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एवरेज आरओआई क्या है आपके ख्याल पे? एवरेज आरओआई इस्लामाबाद में तो आई वुड से 36 मंथ्स हो गया अब, ठीक है, जो एंड दैट्स ऑन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट 20 to 30 मिलियन, यस 20 to 30 मिलियन। ठीक है, जो आपका शुरू में था, इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, आरओआई जो था वो 8 मंथ्स पे था। अच्छा हाँ हाँ, 7 डिड यू अचीव दैट इन 8 8 मंथ्स? मंथ्स। मेरा वो, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे 4 मंथ्स बूम के मिल गए थे, ठीक है, तो मेरा वो जो प्रोजेक्ट उस तरह की, अगर आप प्रोजेक्शंस देखें उस वक्त पे, तो वो 8 मंथ्स पे मैंने पे प्रोजेक्ट हो रहा था अगर मार्केट वैसी रहती, लेकिन मार्केट वैसी नहीं रही, ठीक है, तो मेरा वो अब वो चला गया, अब लेट्स जस्ट से 14 मंथ्स पे, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बट extend हो इवन गया। देन यू गॉट, स्टिल 14 मंथ्स इज वेरी, that's very impressive, वेरी हाँ। इंप्रेसिव। बट तो स्पेशली एक इतना 14 to इंटेंसिव कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो 14 मंथ्स इज 14 to 18 great मंथ्स time। में आपका हो जाता था, लेकिन ठीक जो है, इनिशियली जिन्होंने क्लब्स ने खोला था, दे आई बिलीव, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वो 6 to 8 मंथ्स में कर गए थे, तो अच्छा अर्ली अडॉप्टर्स थे, impressive, वो इसमें हो जाता है। अभी ठीक टियर है, 2 सिटीज में ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो ये मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने आपको जिस ठीक तरह है, इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द वो बताया था, तो ये आई वुड हाईली रिकमेंड टू गेट इनटू इट, यू गोना गेट परफेक्ट, समथिंग आउट ऑफ इट इवेंचुअली इन इंशाल्लाह, टियर 2 सिटीज। इंशाल्लाह, तो इसके लिए ये चीज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरी बात ये है कि दिल नहीं छोटा करना, हाँ हाँ बिजनेस है, ऊपर नीचे हो जाता हाँ, वो है, तो खैर पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट अगर ऑफ द कोई, गेम है, तो हाँ इसमें रिकरिंग कॉस्ट है, लोग ग्लास टूट गया, इस ग्लास तरह की टूट गया, चीजें, मेरे साथ हो चुका है, हाँ ग्लास टूट गया, लाइट्स खराब हो गई। अब ग्लास टूटना वैसे तो बड़ा एक छोटी सी चीज लगती है ग्लास टूटना, लेकिन ग्लास जो है, एक मतलब एक कोट का ग्लास ही सिर्फ मेरे ख्याल से इट्स मोर देन $1 million ओके, कॉस्ट यू। एंड देन ऑब्वियसली द टाइम दैट इट्स नॉट ऑपरेशनल, तो वो कॉस्ट भी है, वो कॉस्ट भी है, फिर ग्लास की इटसेल्फ अलग कॉस्ट है, वो 4-6 दिन हफ्ता आपके जाया हो गए, वो ठीक कॉस्ट है, भी आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया। लाइट्स खराब हो गई, लाइट्स भी बड़ी महंगी। अब इसमें कुछ भी हो जाए ना, ऊंच नीच,
बिजनेस में होती है। अब आप प्राइस पॉइंट अगर 7,000 ले रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन आपकी कोई भी चीज खराब होती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। वो नहीं है क्रिकेट फुटबॉल वाला हिसाब नहीं है, मतलब सारा मटेरियल ही एक्सपेंसिव है उससे। हाँ, which is why हाँ इसकी कॉस्ट जो है वो हाँ वो अगर ज्यादा वो है ही ज्यादा। ज्यादा है, ग्लोबली भी ज्यादा ही है। इस तरह नहीं है ठीक कि है। सिर्फ पाकिस्तान में हमने कोई आफत मचाई हुई है और हम ली जा रहे हैं वैसे, ग्लोबली भी इट्स एन एक्सपेंसिव ठीक स्पोर्ट है, कंपैरेटिवली। तो इस तरह है तो ठीक है, जी। परफेक्ट परफेक्ट। तो किसी ने भी पैडल खोलना है तो फिर डिफरेंट सिटीज के एलआई से हट के जो है देखें। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ठीक है, ठीक है, पर्सनल आपका, वी वैल्यू दैट यार अब्दुल्ला, आप इंडस्ट्री के बंदे हैं तो थैंक यू सो पर्सनल मच, हैज अ लॉट ऑफ वेटेज। दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ, आपने खोलना है, कोई भी बिजनेस करना है, आपने मार्केट स्टडी करनी है, किस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वाकई उसे पैसा बनाना चाहते हो तो आप जब केएलआई पे अपनी मार्केट रिसर्च करोगे तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी इधर नहीं पैसा बनता है, लेकिन वो कमाते कमाते आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ठीक है। वही पैसा आप कहीं और डाल के कहीं जल्दी बना सकते हो। हाँ, मतलब केएलआई में करना है तो पैडल के अलावा आप कहीं और से वो ज्यादा जल्दी रिकूप हाँ, कर सकते हो। मतलब लुक इनटू अदर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज अगर ठीक आपने है, पैडल से ही करना है और जल्दी पैसा कमाना है तो केएलआई नहीं है। ठीक है, लुक इनटू अदर सिटीज। लुक इनटू अदर सिटीज। Perfect, perfect. चलें यार अब्दुल्ला, this was a lovely conversation, Likewise. and anybody, if you need any help with opening your paddle courts or any other sports facility, or if you just need help, you can, reach out to Abdullah. Help कर देंगे ना यार? डेफिनेटली, मैंने बताया ना वो प्रोमो कोड सकलैन वाला यूज हाँ, करना है, चलें तो तो उस पे तो स्पेशल डिस्काउंट है। Abdullah will, definitely help you out. और उसके अलावा we're done with the 4th episode of Rep Talk. Like, follow, subscribe. I just noticed मैंने अभी तक ये किसी episode में नहीं कहा. So we were still getting there. We're still finding our own structure as well. So please help us, support us as much as you can, and we'll have more guests like Abdullah and the rest you've seen previously. All right, guys. Bye bye.